Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। कुछ बिहार के बाद अब अलीपुरद्वार की गृहिणी को असम सरकार ने भेजा एनआरसी नोटिस, भड़की ममता बनर्जी। सिलीगुड़ी में एएसआई अमित सरकार की दबंगई, पड़ोस की लड़की से बात करने पर कॉलेज छात्र की पिटाई की। कल्याण दीवान ने कांग्रेस नेता डॉक्टर मुनीष तामांग के आरोपों का किया खंडन, कहा भाजपा गोरखाओं के लिए दीर्घकालीन योजना पर काम कर रही है। भारतीय दंपत्ति को माता पिता बनाकर अवैध रूप से भारत में रहने वाली बांग्लादेशी युवती गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कुछ बिहार के उत्तम कुमार ब्रजवासी के बाद अब अलीपुरद्वार जिले की अंजलि सील को असम प्रशासन ने विदेशी न्याय अधिकरण का नोटिस भेजा है। यह नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। उनका दावा है कि वे 30 साल से जटेश्वर में रह रही है और असम से उनके परिवार को भी कोई नोटिस नहीं मिला है। अंजलि सील ने ट्रिब्यूनल में जाकर खुद को भारतीय नागरिक साबित करने का भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और असम सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद विरोध के लिए जाऊंगी, देखते हैं मुझे कौन से डिटेंशन कैंप में रखते हैं। আমার নাম অঞ্জলি সিং। তো আপনি কি কোনো নোটিশ পেয়েছেন এনআরসি না, আমি সংক্রান্ত? কোনো নোটিশ পাই নাই। তাহলে কিভাবে জানলেন? আমি জানলাম কালকে আমাকে আলিপুর থেকে ফোন করছে, মিডিয়া থেকে, তখন আমি শুনতে পারলাম। কি মনে হচ্ছে, এটা কি মানে কিরকম মনে হচ্ছে যে এতদিন ধরে আপনি তো বলছেন? আমি এটা নিয়ে আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না যে কিসের জন্য এটা হইলো। আপনার বাড়ি কোথায় এমনিতে? আমার বাবার বাড়ি আসাম। আচ্ছা, আসামের কোথায়? আসামে ধুবড়ি ডিস্ট্রিক্ট। তো কত বছর হলো বিয়ে হয়েছে আপনার? বিয়ে হয়েছে 25 বছর পার হয়ে গেছে, তাও আমি 25 বছর বললাম আর কি। এখানে ভোটার লিস্টে নাম আছে? হ্যাঁ, আধার কার্ড হয়েছে? আধার কার্ড, ব্যাংকের বই সব আছে এখানে, জব কার্ড। তো এখন এটাকে কি ভাবছেন আপনি? আপনার মনের কথাটা একটু খুলে বলুন, এটা কি মনে হচ্ছে আপনার? আমার মনে হচ্ছে যে এইটা তো এখন মিডিয়ার কাছে থাকার কথা না, যেহেতু আমার নামে নোটিশ আসছে, তো নোটিশে তো তাহলে এটা থানায় অফিসারের কাছে থাকার দরকার। এখন এটা মিডিয়ার কাছে কেন? আমার প্রশ্ন হলো এইটাই। सिलीगुड़ी में एएसआई की दबंगई, पड़ोस की लड़की से बात करने पर छात्र की पिटाई। सिलीगुड़ी सुरेशन कॉलेज के छात्र जीत बरई को पड़ोस की किशोरी से बात करने के अपराध में आसीगढ़ पुलिस अधिकारी एएसआई अमित सरकार ने कथित रूप से सरेआम पीटा। घटना राउतबाड़ी नेताजी कॉलोनी में सोमवार दोपहर हुई। पीड़ित का आरोप है कि उसे जमीन पर पटककर सिर, छाती और पेट पर लातें मारी गई। छात्र गंभीर रूप से घायल होकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती है। परिवार ने सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में शिकायत दर्ज कराई है। एएसआई अमित सरकार पर पहले भी मारपीट और बदसलूकी के आरोप लग चुके हैं। ওই গাছের তলায় বসে, তো আমি তো কোনো মেয়েকে আমি তো বলতে পারি না যে পাড়ার মেয়ে হয় যে তুই এখান থেকে সরে যাবে বা কিছু, আমি তো বলতে পারি না। তো তার 2 মিনিট পর দেখলাম যে ওর বাবা আর একটা পুলিশ অফিসার, তার নাম ছিল হ্যাঁ যেই হোক, মানে পুলিশ অফিসার আসলো। আসার পর আমি ওই মেয়েটাকে বললাম যে, মেয়েটার নাম গুড়িয়া, আমি ওকে বললাম যে গুড়িয়া তোর বাবা আর পুলিশ অফিসার আসছে, তুই যা। তো আমি জানতাম কিছু একটা ঘটনা ওদের মধ্যে চলছে। তো গেল, যাওয়ার পর মানে পুলিশটা দেখলো না, ও গেল আর পুলিশটা আসলো। আমি মানে যে ফোনটা ঘাটছি, ডাইরেক্ট পুলিশটা এসে আমাকে এখানে হিট করলো, ডাইরেক্ট এখানে। তারপরে ওইখানকার যেখানে মারছে, ওইখানকার কয়েকজন লোকজন কাজ করছিল, ওরা বলছিল কেন মারছেন বা কিছু এরকম দিচ্ছিল। তো আমাকে পুরা মারছিল। আমি ওই মার খেতে খেতে আমার মাকে আমি কল করেছি। প্রথমে হাত দিয়ে মারছে, প্রথমে হাত দিয়ে আমাকে মাথায় মারছে, তারপরে যেরকম যেন তেন করে ফেলায় মারছে, থাপ্পড় মারছে। তারপরে আমি হলো মাকে কল করছি, মানে মার খেতে খেতে, যে মা আমাকে মারতেছে পুলিশ বিনা কারণে, তুমি আসো। তো মা আসছে। তো মা আসার পর আপনাদের তো দেখছেনই যে আমি একটা ভিডিও করছিলাম। তো তারপরে মা আটকাতে গেছিল। তার আগেও মা, মানে আমি তখনও ভিডিও করিনি, তার আগেও মার গায়ে হাত দিয়েছিল। তো আমাকে কোনো কারণ ছাড়া আমাকে মার।
जिला भाजपा ने कांग्रेस नेता डॉक्टर मुनीष तामांग के इस आरोप का खंडन किया है कि भाजपा गोरखाओं के लिए कुछ नहीं कर रही। दार्जिलिंग कालिम्पोंग जिला अध्यक्ष कल्याण दीवान ने इसका खंडन करते हुए कहा कि भाजपा गोरखाओं के लिए दीर्घकालीन योजना पर काम कर रही है। इसी तरह चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता संशोधन विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि यह काम चुनाव आयोग कर रहा है, भाजपा नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि चुनाव आयोग देश की एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए इसमें भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। विशेष अब यो एउटा डाक्टर मुनीष तामाङ उहाँ एउटा प्रोफेसरको र्याङ्कमा बुद्धिजीवी, म अनुरोध गर्छु कि यहाँको माटो, यहाँको हावापानी, यहाँको ढुङ्गा, यहाँको झारपात, झार जङ्गल सबैसित रुबहु रहेर हामीले आजसम्म हेर्दै आयौं। कांग्रेसको योभन्दा अघिको रुलमा गोर्खाहरूले के प्राप्त गरे, के उपलब्धि गरे, ओके? भाइले भन्नुहुन्छ होला डिजिएसी या जिटिए, तर आजको स्थिति हेर, जिटिए र डिजिएसी दुईटैमा है आज केन्द्र राज्य सरकारको कति हस्तक्षेप छ र त्यसको अवस्था के छ आज। अनि भारतीय दंपति को माता पिता बनाकर अवैध रूप से भारत में रहने वाली बांग्लादेशी युवती गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में बांग्लादेशी युवती अंकिता उर्फ चुमकी सिकंदर को, जिसने विश्वनाथ सिकंदर और श्यामोली सिकंदर को अपने माता पिता बताकर अवैध रूप से भारत में रह रही थी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। युवती के आधार, पैन और बैंक दस्तावेज भी बनाए गए थे। आरोपी श्यामोली सिकंदर भी पकड़ी गई, जबकि विश्वनाथ सिकंदर फरार है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। আগে কোথায় থাকতো সেটা তো আমি জানি না, আমরাও ভাড়া থাকি এখানে, ঠিক আছে। ও 5-7 বছর আছে এখানে, ও বাড়ি করেছে, বাড়িটা রেডি রাইল তো কতদিন ধরে আছে ভাড়া? এখানে 5-7 বছর আমরা আছি ভাড়ায়। হ্যাঁ, ভাড়া আছে, আমিও ভাড়া বাড়ি থাকি। চুমকির কতদিন ধরে আছে? ও আমাদের সঙ্গে আছে, একসঙ্গে ভাড়া বাড়ি, এই বাড়ি থাকি, আমরা সব ভাড়া থাকি। আগে এরা কোথায় থাকতো? এটা আমি বলতো না, বুন আছে এখন থাকতো, হ্যাঁ, তোরা আসছে অনেকদিন আগে থেকে। এই যে শ্যামলী কি চুমকির মেয়ে? ওই কাকিমার নাম কি? শ্যামলী শিকদার, শ্যামলী আর বিশ্বনাথ। কাকিমা তো, হ্যাঁ, ওনার মেয়ে, ওনারই। মিথ্যে কথা বলি, আমার নাম বিপুল রায়। तृणमूल युवा कांग्रेस ने भाजपा की बर्बरता के विरोध में सिलीगुड़ी में विरोध मार्च निकाला। दार्जिलिंग जिला तृणमूल युवा कांग्रेस ने भाजपा पर बंगाली भाषा, संस्कृति, पर्यावरण और कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। भाजपा के उत्तर कन्या अभियान के विरोध में तीनबत्ती मोड़ से विशाल विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें सिलीगुड़ी के महापौर गौतम देव सहित कई नेता शामिल हुए। मार्च के बाद वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। तृणमूल ने कहा कि वह राजनीति, हिंसा के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाएगी। सिलीगुड़ी में फिर एटीएम लूट, रात के अंधेरे में करीब 20 लाख रुपए गायब। सिलीगुड़ी लोकनाथ बाजार स्थित एक सरकारी बैंक के एटीएम से सोमवार देर रात लूट हुई। बदमाश ने गैस कटर से मशीन काटी, लगभग 20 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। वारदात के दौरान एटीएम में आग लग गई और सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया गया। बदमाश सफेद टाटा सुमो से सवार होकर आए थे। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन आरोपी घोघोमाली होते हुए फरार हो गए। घटना के बाद दमकल टीम ने आग बुझाई। डीसीपी राकेश सिंह मौके पर पहुंचे। अब मामले की जांच जारी है। কিছু ইন্ডিকেটিভ গাড়ির সম্বন্ধে একটু আইডিয়া পেয়েছি আমরা, ওটা দেখা হচ্ছে, বিভিন্ন থানাকে বলা হয়েছে, পার্শ্ববর্তী থানাগুলোতে আমরা তদন্ত করে দেখছি। একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে কোনো এটিএম এ সিকিউরিটি গার্ড থাকছে না, এই পুলিশের কি সব দায়িত্ব? সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি, ব্যাপারটা কি হয়েছে। স্টেট ব্যাংকের রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা খতিয়ে দেখছি। গাড়ির নাম্বার কি জানতে পেরেছেন? আশুগড় মোড়ে সেই তদন্তের বিষয় আছে, আমরা দেখছি বিষয়টা, কিছু পাওয়া গেল সাহেব? সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি আমরা। ঠিক আছে, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ছটাকায় 1 কোটি কোটি টাকা ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करोना मटेरियल फाइनल सर, याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। ₹6 में 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 केवल ₹6 में 1 करोड़। ₹6 में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। ₹6 में 1 करोड 1 करोड ₹6 में 6 डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। प्लीज बैठो, बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करना। वाह कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बस मुकेश, थ्याङ्क यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी संलग्न फांसीदेवा के विधान नगर बिजली मोनी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर सोमवार देर रात एक लॉरी के खड़े तेल टैंकर को टक्कर मारने से आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी युवक खराब
पड़े टैंकर की मरम्मत कर रहे थे। जब हादसा हुआ, लॉरी टक्कर मारकर फरार हो गई। आग बुझाने के लिए नक्सलबाड़ी और माटीगड़ा से दमकल की गाड़ियां भेजी गई। घायलों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। विधाननगर थाने की पुलिस अब पूरे मामला की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां की जा रही थी। 56 युवतियों की तस्करी। न्यू जलपाईगुड़ी जीआरपी और आरपीएफ ने सोमवार रात 56 युवतियों को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया, जिन्हें पटना जाने वाली कैपिटल एक्सप्रेस से छुड़ाया गया। जांच में पता चला है कि तस्करी ड्रग एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी नामक संस्था के जरिए उत्कर्ष बांग्ला और ग्रामीण कौशल्य योजना के नाम पर की जा रही थी। 2 आरोपी चंद्रिमा कर और छत्तीसगढ़ निवासी जितेंद्र पासवान को गिरफ्तार किया गया है। सिलीगुड़ी ठाकुरनगर स्थित स्थान से कई फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस को संदेह है कि इस रैकेट में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी शामिल हो सकते हैं। 20 का नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट है हमको सर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिला हुआ है और ये 2020 से है और 2026 मार्च तक का है प्रोजेक्ट चलेगा। ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है सर। इसमें ये मिसकम्युनिकेशन ये हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ उस समय पुलिस वाले मांगा था, हमारा जो सेंटर हेड था उसने शो नहीं कर पाया। वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके हम वहीं से इसीलिए आए हुए हैं। हम कल आए थे, साहब से मिले तो साहब ने कहा था कि एनजीपी आके दिखाइएगा, तो बस अभी आए सर से मिले, सर बोले चलिए। ये लड़कियों का जाना था बेंगलोर, तो पटना का ट्रेन में क्यों गए? वही मिस बात है, सामने मिसकम्युनिकेशन है। मैं टिकट लेके आया हूँ, उसमें ये है कि टिकट जो ट्रेन थी सर वो आपका जलपाईगुड़ी एनजेपी से राजेंद्र नगर की ट्रेन थी, कोई कैपिटल ट्रेन थी, और फिर शाम को 3:30 बजे दानापुर से बेंगलोर की ट्रेन थी। ब्रेक जर्नी था। यस। हाथों में नंबर क्यों लिखा गया था? लड़कियों के हाथों में नंबर क्या था? मैम जब टिकट पहले जाता वेटिंग में था, बाद में वो कंफर्म हुआ, तो मैम जब कंफर्म हुआ मैम ने टिकट बच्चे का इसमें लिख दिया, S1 में 36 नंबर है, S2 में 37 नंबर है, वो लिख दिया। ये लड़कियों को इंस्टीट्यूट में क्या शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता था? क्या प्रशिक्षण दिया जाता था? गवर्नमेंट का होता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों दिखता है। इसमें इनको 3 महीने की ट्रेनिंग थी, प्लस इनको क्या प्रशिक्षण दिया जाता था? होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग था। तो एसएसबी ने नाबालिग लड़की की तस्करी नाकाम की, 2 गिरफ्तार। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा के खोड़ीबाड़ी इलाके से नाबालिग लड़की को तस्करी के प्रयास में बचाया। आरोपित शंकर रॉय और कांची रॉय नेपाल के भोजपुर जिले के निवासी हैं। दस्तावेजों में विसंगति पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार कर खोड़ीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया। बचाई गई लड़की को बाल सुधार गृह भेजा गया है। मामले की जांच जारी है। जलपाईगुड़ी में पहली बार कृत्रिम रूप से 6 कछुए के बच्चों को दिया गया जन्म। जलपाईगुड़ी पर्यावरण प्रेमी विश्वजीत दत्त चौधरी ने तीस्ता नदी के किनारे बालू में मिले कछुए के अंडों को कृत्रिम रूप से सेते हुए 6 कछुओं को जन्म दिलाने में सफलता पाई है। यह जलपाईगुड़ी शहर में पहली बार हुआ है जब किसी व्यक्ति ने घर पर ही प्राकृतिक वातावरण तैयार कर कछुओं के अंडों से जीवन निकालने में सफलता पाई है। विश्वजीत को रंगधामाली गांव में सांप पकड़ने समय ये अंडे मिले थे। उन्होंने न सिर्फ अंडे बल्कि बालू भी साथ लाकर एक सुरक्षित तापमान और नमी वाला माहौल बनाया। 68 दिनों के बाद 6 कछुए जन्मे, जिनमें बाद में वन विभाग को सौंप दिया गया। ঘটনাটা হচ্ছে রংদামালি যে বাজার আছে, বাজারের ওখানে যে স্থানীয় ওখানকার এলাকার পঞ্চায়েত আমাকে একটু সাপের কলের জন্য, অসুস্থ সাপের কলের জন্য ডাকে। তারপর সেইটা উদ্ধার করার পরে আমাকে বলে যে কিছু ডিম আছে চরের মধ্যে পড়ে আছে, তো ডিমগুলো কাকে খাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাবে বা কেউ কিছু করবে, ডিমগুলোকে তুমি একটু নিয়ে যাও। তারপরে আমি ওখান থেকে ডিমগুলোকে উদ্ধার করি এবং সেখান থেকে কিছু বালু নিয়ে আসি, বালু মানে তিস্তা বেডের বালু নিয়ে আসি, নিয়ে এসে বাড়িতে একটা পরিবেশ তৈরি করি একটা পিচবোর্ডের বড় বাক্সে, এবং সেখানে বুঝতে পারি যে এটা কচ্ছপের কোনো একটা প্রজাতির কচ্ছপের ডিম হবে। তারপর সেটাকে একটু পড়াশোনাও করি, পড়াশোনা করে দেখলাম যে 60 থেকে 75 দিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলো হতে পারে। তারপর আমি সেইভাবে 7 দিন বাদে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে যেরকম বৃষ্টি হয় সেরকমভাবে জল ছিটাতাম, ছিটিয়ে এইভাবে করতে 65 দিনের মাথায় প্রথম বাচ্চা তাদের হয়। এইভাবে 6টি বাচ্চার জন্ম হয়। कलवट के नीचे बम बरामद, इलाके में दहशत। मुर्शिदाबाद के रानीनगर के डिप्टी पाड़ा इलाके में कलवट के नीचे बम बरामद हुआ। सुबह जब स्थानीय लोग सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने पुलिया के नीचे एक बैग देखा जिसमें एक सॉकेट बम था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। रानीनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। बम निरोधक दस्ते को बम को निष्क्रिय करने की सूचना दी गई। बाद में बम को निष्क्रिय किया गया। इलाके में दहशत का माहौल देखा गया।
मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए और भारतीय दलाल गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद के दोमकल पुलिस ने बख्शीपुर घाट इलाके से एक बांग्लादेशी घुसपैठिए छोटन मंडल और भारतीय दलाल सब्बूर अली मंडल को गिरफ्तार किया है। दोनों 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए हैं। पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि घुसपैठिए भारत क्यों घुस रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।